ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्यों ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਘਰ ਆਇਆ। क्यों ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਚਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। क्यों ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਖਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। हैं ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, हाँ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ओए ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਲਵਾਇਆ, ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਖੱਟੂ। हाँ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਨਾ हाँ ਆਈ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ। ओके ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? मैं सोचूंगा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। ठीक है ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਏ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਨਾ, हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ। हाँ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਿਹਾ ठीक है ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸੌਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਤੈਨੂੰ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੋਰੇਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਮਬੈਸਡਰ ਲਾ ਦਿਓ। हैं ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਾਉਲਾ ਕਾਸਮੀ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ, अच्छा ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਹੈ। अच्छा ਉੱਠੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ हाँ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ। ਯਾਰ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਓਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ ਆ ਕੇ, ਬਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ कि तेरे पक्के नाराज नहीं हो नहीं जाए। मेरे ख्याल से कुछ दिन में बात खत्म हो जाएगी। ओ माशाल्लाह, क्या ये कौन है? और से देखो शायद काजी वाजिद साहब। नहीं है काजी वाजिद साहब, काजी अहमद सईद साहब। Yes। रहीम यार खान। यस ਜਦੋਂ नहीं गया हाँ नहीं रोटी पूछी, अच्छा पहले ही ला के बैठे अच्छा होंगे। पहले ही लगी होती है ਸਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ हाँ ਕੌਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ 24/7 ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿਸਟੇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। अच्छा ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, हाँ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, आहा ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਤਰਾਮ। जबरदस्त ਸਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਤਰਾਮ ਪੈਦਾ ਨਾ ओए होए ਹੋਵੇ। होए। ਜੀ ਸਰ। अच्छा ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਪੀਪੀਐਚ? क्यों ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। अच्छा ਸਰ ਕਾਫ ਲੀਗ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ? कौन नाल से ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਈ ਨਾਲ ਪੀਰ ਪਗਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਿਨੇ ਕਰਾਈ? कहने ਮੈਂ। ना करे ਸਰ ਜੀ ਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ? कौन सी ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। हाँ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ, ਓ ਲਓ ਮਾਈ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? वेलकम बैक जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ इस्लाम है और मेरा सर से सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्लोगन है रोटी कपड़ा मकान। क्या ये आपके वोटर्स को हकीकत में मिल रहा है या सिर्फ ख्वाबों की हद तक? देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई तो उस वक्त ये तीन चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये मैं समझता हूँ 75% लोगों के पास नहीं थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
कहा कि रोटी कपड़ा और मकान हम देंगे। इस वक्त भी हम उस नारे पे मौजूद हैं। आप देखें जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है उसमें रोज़गार के मौके बढ़े हैं और लोगों को रोज़गार भी मिली है। ज़राअत में देखें तो उन्होंने शुगर कैन को देख लें, उनके रेट बढ़ाए हैं, गंदम का रेट भी उन्होंने बढ़ाया था। किसान खुशहाल हो जाता है, मजदूर खुशहाल हो जाता है। तो इसी पैटर्न पे जो है आप समझ लें कि रोटी कपड़ा और मकान है, क्योंकि जब ज़िम्मेदार के पास पैसा आएगा तो फिर ज़िम्मेदार मार्केट में आता है, ख़रीदारी करता है, मार्केट में पैसा आता है, लोगों में खुशहाली आती है। ये सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हबीबा शाहिद एंड मेरा क्वेश्चन जो है वो मैम से है कि मॉडल्स को सबसे ज़्यादा डर जो है वो किस चीज़ का होता है, जूता टूटने का या मेकअप पिघलने का? मॉडल को किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, क्योंकि मॉडल नाम ही कॉन्फिडेंट का है। मॉडल नाम ही कॉन्फिडेंट का। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट आप में नहीं है तो आप किस तरह वॉक करेंगे, आप कैमरे के सामने खड़े किस तरह होंगे? वाह वाह, ये एक नया उन्होंने बताया कि मॉडल नाम ही कॉन्फिडेंट का है, यानी कि अगली बार आप जब जा रहे हो किसी इम्तिहान देने के लिए या आपका कोई जानने वाला बच्चा या कजन जा रहा हो तो आपने कहना बेटे तुम मॉडल फील करो एग्जाम से पहले। देखिए ना, हर इंसान मॉडल ही है। आप भी कह सकते हैं सर मैं इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जीतने के लिए मॉडल महसूस कर रहा हूँ। नहीं वैसे खतरा रहता है एड़ी बीड़ी टूटने का? नहीं, मुझे लगता है अगर आपने अच्छे जूते पहने हो तो आपको नहीं इसका खतरा रहता कि आपकी जूती टूटनी है। और अगर आपका अच्छा मेकअप हुआ है, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी डैमेज नहीं है या फिर कोई मसला नहीं चल रहा तो आपका मेकअप भी खराब नहीं होगा। कभी स्लिप होए जे तुसी मॉडलिंग करते स्लिप हो गए? नहीं, अभी तक वो नहीं। पक्का ऊपर डिग गया हो, नहीं किसी ने पानी वाला छापर मारता हो। अच्छी बात, अच्छी बात। बड़ी गल है। ये सवाल अगला किनका? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान सरफराज है और मेरा सर से सवाल है कि आपकी पार्टी एक ही इंसान को बार बार मौका क्यों देती है? पहले कायम अली शाह को भी 3 दफ़ा आजमाया, अब मुराद अली शाह साहब को भी तीसरी दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब किया गया है। आपने वो मिसाल सुनी हुई अंग्रेजी की, ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड। इसका मतलब ये कि बार बार ट्राई करो जब तक कामयाब ना हो जाओ। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसी बात नहीं है। आप वज़ीर आज़म से देख लें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने, बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद बनी, यूसुफ शाह गिलानी साहब बने और राजा परवेज़ अशरफ बने। इसी तरह आप सिंध के वज़ीर आला देखें, ये बात आपकी सही है कि कायम अली शाह साहब को बनाया गया, फिर अब मुराद अली शाह साहब को बनाया गया। 2 चीज़ें पार्टी में देखते हैं, एक पार्टी की वफादारी होती है, दूसरी एबिलिटी समझ लें, जिसकी बुनियाद पे पार्टी कंसीडर करती है अपने लोगों को कि भी ये हमारे सूबे को अच्छे तरीके से चलाएंगे। ऐसी नहीं है कोई बात के भी कि फैमिली के हिसाब से आए कि बाप के बाद बेटा या बेटे के बाद पोता, नहीं, एबिलिटी पे है। अब मुराद अली शाह साहब की जो है कारकर्दगी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है, जिसकी बुनियाद पे उनको दूसरी दफ़ा कंसीडर किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबैदुल्ला शाकिर है और मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि आपके हलके की गलियां ज़्यादा पक्की हैं या आपके वादे? देखिए जी, मैं ग्रास रूट का आदमी हूँ, वादे भी पक्के करते हैं और गलियां भी पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इतनी बता दूं कि मैं आबाद से सियासत में हूँ, मैं प्रैक्टिकली 25 साल हो गए। करप्शन, कमीशन, धौंस, धांधली, जुल्म, ज़्यादती, कब्जों से हराम की एक कमाई का 1 पैसे का धब्बा मेरे कपड़ों पे नहीं। ये अल्लाह का फजल है। और जो आपने गलियों की बात की है वो होते हैं फंड से। अब पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारी कोलेशन है। अब वो पिछले साल उन्हें फ़ंड दिए तो हमने काफ़ी फार्म टू मार्केट रोड जो है वो बनाई, सेवरेज सिस्टम लाए, टफ टैलें लगाई हैं, सोलिंग्स लगाई हैं, क्योंकि हमारा इलाके बैकवर्ड है। लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूँ, जितना फ़ंड लाहौर में लगता है इतना फ़ंड हमारे अगर साउथ पंजाब को मिल जाए तो साउथ पंजाब सोने की चिड़िया बन जाए। काजी साहब, अंडर द स्पॉटलाइट सेगमेंट है हमारा। जी, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब सिलेक्ट करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000 रुपए। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? उन्होंने आपकी तरफ इशारा कर दी। ठीक है जी। गाइस साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं सर वो हैं जनाब शर्जील मेमन, जनाब सईद गनी और मोहतरमा शेरी रहमान। तो ये बताएं कि तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? शेरी रहमान के। स्माइल करके किसको देख रहे हैं? सईद गनी। और फ्लोर आ गया हुआ है शर्जील मेमन साहब का। जी। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद
वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नदीम अफजल चंद और जनाब फैसल करीम कुंडी। किसको देके जाएंगे चांद पे फिर? नदीम अफजल चंद। सर ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन रख के जरा कमरे से बाहर चले जाएंगे चहलकदमी के लिए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब यूसुफ रजा गिरानी, जनाब राजा परवेज अशरफ और जनाब मुराद अली शाह। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? सैयद यूसुफ रजा गिलानी। किन की कॉल आए तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे? मुराद अली शाह। और तीसरी ऑप्शन है राजा परवेज अशरफ साहब। एक टाइटैनिक पे जा रहे हैं आप, क्रूज शिप है बड़ा सा, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको साथ लेके जाना चाहेंगे क्रूज पे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा हिना रबानी खर और माहिरा खान। हिना रबानी खान। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं काजी साहब? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मखदूम अहमद महमूद साहब और जनाब आसिफ जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मखदूम सैयद अहमद महमूद। ओए होए 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 होए। और जरदारी साहब शो बहुत गौर ना वेखते हैं। कोई बात नहीं, सरदारी साहब खुश होंगे अच्छा जी। मेरी वफादारी को देख, मेरी दोस्ती को देख के। दोस्ती को ये देखे, उनको पता है, उनको पता है जरदारी साहब को किनके थ्रू पीपल्स पार्टी में है तो वो खुश होंगे इस बात पे। अच्छा, उस पर उन्होंने कहना है कि काजी खपे। माही जी आपकी बारी है, बता दें फिर, आपकी भी जिंदगी ये फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफा होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दे और एक को कहे कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है मारिया बी, HSY और अली जीशान। HSY के साथ सेल्फी लूंगी मैं। स्माइल किन को देंगी? स्माइल मारिया भी को दे दूंगी। और फ्लोर आगे अली जीशान। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और फहाद अली। फहद अली। वहाद अली। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और काजी अहमद सईद। केसर पिया। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाहरुख खान और कैसर पिया। केसर पिया। ये मैंने शो खत्म कर दिया, अब मैंने सब देख लिया। खूबसूरत लड़कियां होंगी सच्चियां ने। बिल्कुल मैंने देख लिया। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। सर थैंक यू सो मच। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।